Good morning, student. Today, in this series of current electricity, I will discuss, student, about circuit theory. Okay, student, and then I will do the Kirchhoff's and nodal analysis. In this class, you will learn how to solve any complex circuit. Already one complex circuit has been drawn. Similar kind of circuit, you can solve it very easily after attending this class, student. Okay. For the student, the basic knowledge which is required is first, student. Suppose, student, this is a conductor. This is a conductor, student, and I have applied electric field. Due to this electric field, student, electrons will start moving, as you have already seen. So if the electric field is along this direction, electron will travel along opposite direction, but conventionally the current is considered to be flowing in this direction, student. We have already seen in the previous chapter that along the direction of electric field, listen, student, very carefully, along the direction of electric field, along the direction of electric field, potential decreases. Potential decreases. Okay. This means, student, if I have this 2 point, current is flowing in this direction, electric field is along this direction, this is at high potential and this is at low potential. Current always flows from high to low potential. This point you have to remember. This kind of substance, student, it is a conductor, it is actually known as resistor. Because inside it obstructs the flow of current also due to the collisions. So this symbolically is given name as resistor. So in any resistor, student, in any resistor, okay, you understood the meaning of resistor. Current will flow always from high potential to low potential. These are the basic thing, okay. Current will flow from high to low potential. Next thing is, student, about the cell or a battery. Say this is a cell, student, the longer line is known as positive, this is negative, okay. Now this battery has certain potential difference across its ends, and that is known as EMF of the battery. The potential difference across the end is known as EMF. We will come into detail about it, the more meaning about it, student, denoted by delta U. But in case of battery or cell, student, remember, the current can flow in either direction. One way which we study generally, current flows from positive to negative, like this. This is known as discharging process. But current can also flow in opposite direction if some other battery of high potential is connected. So, student, the rule is resistor, this is the rule. Current will always flow from high to low. But in case of battery, student, in case of battery or a cell, current can flow in either direction, high to low or low to high potential. Both the direction current can flow across a battery or across a cell. But in case of resistor, current will always flow from high to low potential. Okay, student, this you have to remember. This is the basic thing. Now, another rule about battery or resistor is, student, total incoming current will be equal to total outgoing current. For any battery, this rule you remember, incoming current will be equal to outgoing current. How much current outgoing, same current will enter. For a battery, this rule you have to remember, student. Now, student, two important rules for analyzing the circuit of this category. We have, student, Kirchhoff's law or Kirchhoff's rule.
First is known as student loop rule. No, first I will specify junction rule, student. Junction, okay. Now what is junction, student? Suppose I have this kind of circuit. See, student, this is one of the junction where the paths are distributed. One path is this, one path is this. This is the junction, student, okay. This is the circuit I have. Now in this junction, student, the rule is junction incoming current I in will be equal to outgoing current. इस जंक्शन में जितनी करंट अंदर तरफ आ रही है उतनी करंट बाहर जाएंगी, ये रूल है. नाउ सपोज मैंने एज्यूम कर लिया कि यहां से इसमें करंट जा रहा है I1. मैंने कहा था रजिस्टर में जितना करंट एंटर करेगा उतना लीव भी करेगा. इसमें स्टूडेंट एज्यूम कर लेते हैं I2 और इसमें एज्यूम कर लेते हैं I3. अब अगर आप इस जंक्शन को देखो, इनकमिंग करंट I1 है और यहां से आउटगोइंग करंट I2 और I3 है. तो जंक्शन रूल के अनुसार स्टूडेंट I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3. अगर सपोज स्टूडेंट कहीं पे प्रॉब्लम ये आती है कि आपको ये समझ में नहीं आता कि कौन सा करंट इनकमिंग है कौन सा आउटगोइंग, तो आप इवन अगर करंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में लोगे तो आपका आंसर माइनस में आएगा, मतलब सही आएगा. आप किसी भी जंक्शन में करंट एज्यूम कर सकते हो, इनकमिंग और आउटगोइंग करंट, ऑटोमेटिक आपका आंसर बाद में ऑपोजिट साइन से क्या आ जाएगा. तो ये जंक्शन का, ये किरचॉफ्स का पहला रूल है स्टूडेंट, जंक्शन रूल इसको बोलते हैं. ये इसको नोड भी बोलते हैं. नोड, इसको एक नोड कहा जाता है स्टूडेंट, जहां से करंट, जहां से एक से ज्यादा पाथ निकलती हैं उसको नोड कहते हैं. इट इज अ जंक्शन स्टूडेंट. दूसरा रूल है स्टूडेंट लूप रूल कहते हैं. लूप मतलब स्टूडेंट वो सर्किट क्लोज होना चाहिए, एक लूप तैयार. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक लूप है, अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, यहां से ये देखिए वहीं पे मैं आ गया, दिस इज द वन लूप. अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये ऐसे ट्रेवल करता हूं, ऐसे ट्रेवल करता हूं, अगेन आई एम रिटर्निंग टू द सेम पॉइंट, ये लूप है स्टूडेंट. मतलब वो लूप में अपन एक जगह से दूसरे जगह में विदाउट एनी ब्रेक आ सकें, दैट इज ए नोन एज लूप. तो यहाँ पे देखिए कई लूप, एक लूप ऐसा बनेगा, एक ये वाला एक लूप है, ऐसे जाऊं, इफ आई ट्रेवल लाइक दिस, दिस वन लूप. दूसरा मैंने आपको पहले ही बताया एक लूप ये भी है स्टूडेंट. अब जो लूप रूल क्या है स्टूडेंट, ये रूल ये है, इफ we travel along any path, हम किसी भी पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं, ओके, देन द नेट पोटेंशियल डिफरेंस अराउंड द क्लोज्ड लूप, जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा स्टूडेंट अराउंड, वो जीरो आएगा. मैं इसका मीनिंग आपको और अभी डिटेल में समझाऊंगा. कैसे स्टूडेंट, देखिए सपोज मैंने सिलेक्ट किया ये वाला लूप, ये पॉइंट में नाम दे दे रहा हूं ए, दिस इज बी, दिस इज सी. तो स्टूडेंट मैं ये वाला लूप सिलेक्ट कर रहा हूं, ये यहां से जा रहा हूं ऐसे लाइक दिस, आई एम कमिंग लाइक दिस. ये वाला पाथ मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है. अच्छा, जब मैं स्टूडेंट यहां से यहां ट्रेवल कर रहा हूं, देयर इज ए पोटेंशियल ड्रॉप कितना, I2 इंटू R3. फिर मैं देखिए स्टूडेंट दिस आई एम ट्रेवलिंग अलोंग दिस पाथ, ऐसे आ रहा हूं. अब मैं ऐसे आया, ऐसे आया. अब स्टूडेंट ये एक रजिस्टर है, फिर से R2, इसमें यहां मैंने स्टूडेंट R3 और इसको R2 लिया, तो इसको, इस करंट को I2 लेते हैं, इसको I3 लेते हैं स्टूडेंट, ओके. यहां भी एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा स्टूडेंट I2 R2, ठीक है. किरचॉफ लॉ ये बता रहा है कि इन दोनों का नेट जीरो होगा, लेकिन स्टूडेंट इसमें एक साइन कन्वेंशन है. देखिए व्हेन आई एम ट्रेवलिंग अलोंग दिस पाथ, करंट के डायरेक्शन में, अभी मैंने बताया था करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, मतलब मैं लोअर साइड जा रहा हूं, तो इस पोटेंशियल ड्रॉप को स्टूडेंट नेगेटिव लेना है. ये आप रूल याद कर लीजिए. अगर आप हाई टू लो जा रहे हैं तो लोअर तरफ, तो मतलब नेगेटिव. अब फिर यहां देखिए स्टूडेंट, जब मैं यहां पे आ रहा हूं, नाउ आई एम ट्रेवलिंग अलोंग दिस पाथ, करंट के ऑपोजिट, करंट हाई से लो जाती है, मतलब मैं हाई साइड आ रहा हूं, तो ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप प्लस आएगा. ये क्लोज लूप आ गया, मैं वहीं पे आ गया वापस इन द सेम पॉइंट, इसका सम स्टूडेंट जीरो आएगा. ये है किरचॉफ्स का सेकंड रूल. अब एक और मैं लूप में आपको अप्लाई करके दिखाता हूं स्टूडेंट. देखिए वन मोर लूप आई विल सी, टेक.
नाउ आई एम सेलेक्टिंग दिस पाथ स्टूडेंट, देखिए ए बी ये वाला पाथ, सी और ये ईएमएफ ई है ऐसा, ये पाथ मैंने यहां से स्टार्ट किया। पहला पोटेंशियल ड्रॉप I1 R1, देखिए करंट के डायरेक्शन में नेगेटिव। अब रूल को याद रखिए, करंट फ्लोज फ्रॉम हाई टू लो, हम लोअर साइड जा रहे हैं, हम ऑपोजिट भी आ सकते थे तो पॉजिटिव लेते। फिर ये वाला रजिस्टर आया, इसमें फिर भी देखिए हाई टू लो, करंट है I2, फिर माइनस, ये पाथ, ये कंडक्टर आ गया, नो पोटेंशियल ड्रॉप नो। अब स्टूडेंट देखिए ये सेल आ रहा है एंड आई एम ट्रेवलिंग इन दिस पाथ, मैं नेगेटिव से प्लस में जा रहा हूं, मींस हायर साइड, तो ये वाला ईएमएफ प्लस लेना पड़ेगा। अगेन आई एम रिटर्निंग द सेम पाथ, ये स्टूडेंट जीरो हो जाएगा। तो दिस इज हाउ स्टूडेंट किरचॉफ्स लॉ रूल हैज टू बी अप्लाइड। तो आपको रूल क्या याद रखना, देखिए मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं। सपोज स्टूडेंट हमारे पास ये सर्किट है, दिस इज 2 ohm, this is 4 ohm, this is 5 ohm, and this battery is of cell, ये स्टूडेंट 10 वोल्ट का है, ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट करंट एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वेरियस ब्रांचेस। मैं क्या करूंगा, देखिए पहले करंट एज्यूम कर लूंगा स्टूडेंट, क्या एज्यूम करूंगा, ये वाला करंट I1 यहां से करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है स्टूडेंट, इसमें I2 इसमें I3, ये हो गया स्टूडेंट। अब देखिए सबसे पहले जंक्शन रूल, ये नोड है, इसको नोड कहते हैं, इस नोड में इनकमिंग करंट I1 है, आउटगोइंग करंट I2 I3, दिस आई हैव ऑलरेडी रिटन, ये पहला इक्वेशन बन गया। अब स्टूडेंट मैं आपको लूप रूल अप्लाई करूं, देखिए स्टूडेंट मैं इस लूप को फॉलो कर रहा हूं, इस पाथ को ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। मैं पहले यहां से यहां रजिस्टर में ट्रेवल किया तो IR ड्रॉप होगा, करंट के डायरेक्शन में माइनस, तो IR 4 into I2। नाउ आई एम ट्रेवलिंग इन दिस, अब ये करंट के अगेंस्ट में हो गया स्टूडेंट, पोटेंशियल ड्रॉप प्लस में रहूंगा, IR प्लस 5 I3, रिटर्निंग द सेम पॉइंट, सम 0, ये इक्वेशन बन गया स्टूडेंट। अब मैं यहां अप्लाई कर रहा हूं इस पाथ में स्टूडेंट, दिस पाथ, देखिए पहले मैं यहां से यहां आया, ये 2 ओम का रजिस्टर है स्टूडेंट, करंट I1 है, करंट के डायरेक्शन में माइनस I1 R1, फिर स्टूडेंट मैं यहां से आया I3 माइनस I3 इंटू 5, ये R1 का वैल्यू आई एम राइटिंग 2 है स्टूडेंट, दिस पाथ दिस पाथ दिस पाथ, ये देखिए स्टूडेंट बैटरी को मैं क्रॉस कर रहा हूं माइनस से प्लस, तो ये प्लस 10 हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए दूसरा इक्वेशन आ गया, नाउ स्टूडेंट 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, यू कैन सॉल्व इट, ये है स्टूडेंट किरचॉफ्स का लूप रूल। आपको एक चीज याद रखना है स्टूडेंट, अगर आप रजिस्टर के अक्रॉस ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेवल का डायरेक्शन आप चूज कर सकते हैं ऑन योर ओन, मान लो ये करंट है एंड यू आर ट्रेवलिंग फ्रॉम हियर टू हियर, तो आपको ये वाला ड्रॉप नेगेटिव लेना है, आप लोअर में जा रहे हैं, और अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो आप हाई में आ रहे हैं तो आपको प्लस लेना है, एक बार माइनस आ ले सकते हैं, एक बार प्लस, दोनों में आंसर सेम आएगा, आपकी डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल पर डिपेंड करेगा। और अगर आप बैटरी यूज करते हैं, ये जो सेल, अगर आप सेल से नेगेटिव में पॉजिटिव तरफ ट्रेवल कर रहे हैं तो ये प्लस में आएगा स्टूडेंट, प्लस ईएमएफ आएगा, और अगर आप सेल में इस तरफ जा रहे हैं ट्रेवल करते हुए तो ये वाला ईएमएफ नेगेटिव में आएगा स्टूडेंट। और ट्रेवल अपना चॉइस है, अपन किसी भी पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं, इवन करंट, मैंने कहा करंट भी आप अपने मन से सिलेक्ट कर सकते हैं, यदि आपने मान लो एक्चुअल करंट के ऑपोजिट ले लिया है तो आंसर उसका नेगेटिव में आ जाएगा। सो दिस इज स्टूडेंट द 2 रूल्स टू सॉल्व द इलेक्ट्रिकल सर्किट, किरचॉफ्स and first loop rule and another is junction rule। अब स्टूडेंट इससे भी एक इजियर मेथड है जिसको अपन कहते हैं, इसका नाम है लूप एनालिसिस, ये जो मैंने मेथड बताया इसको कहते हैं लूप एनालिसिस। अब मैं सेकंड आपको एक और मेथड बताऊंगा स्टूडेंट फॉर ए कॉम्प्लेक्स सर्किट लाइक दिस, जहां पे बहुत सारा लूप बन के वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो है नोडल एनालिसिस स्टूडेंट। So now I will give you the second method to solve the electrical circuit known as nodal analysis। Nodal analysis। अब नोडल एनालिसिस क्या है स्टूडेंट, देखिए मैं पहले आपको एग्जांपल
से क्रिएट, अभी द प्रीवियस सर्किट आई एम अगेन टेकिंग। ये स्टूडेंट 2 ओम, इसको 4 ओम, इसको 5 ओम, ये 10 ओम, ठीक है। नाउ स्टूडेंट व्हाट इज नोडल एनालिसिस? फर्स्ट एज्यूम पोटेंशियल जीरो एट एनी वन नोड। आप किसी भी एक नोड में पोटेंशियल को जीरो एज्यूम कर सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है स्टूडेंट, ओनली वंस, एक ही बार ऐसा कर सकते हैं, एक ही बार एक नोड को किसी को भी एज्यूम कर लीजिए जीरो, पहला पॉइंट। अब मैं यहां पे इस नोड को यहां पे एज्यूम कर रहा हूं जीरो स्टूडेंट, ये ठीक है, 0 वोल्ट मैंने एज्यूम कर लिया। सेकंड, राइट द अदर वोल्टेजेस, और मैं कह सकता राइट द अदर नोड वोल्टेजेस, बाकी वोल्टेज आपको लिखना है। और अगर आपको वोल्टेज अननोन है तो आपको वेरिएबल से रिप्लेस करना है। कैसे? देखिए, जैसे मैंने इसको 0 लिया, ये तो सेल है, 10 दिख रहा है, तो मतलब यहाँ पे 10 आ गया, ये तो नोन, मैं निकाल लिया 10। ये सेम वायर है, यहाँ भी 10, यहाँ 0, ये सेम वायर है, यहाँ 0। अब स्टूडेंट यहाँ का मुझे आई कैन नॉट डायरेक्टली फाइंड आउट, इसको आपको एक वेरिएबल एज्यूम करना है v। तो वही मैंने लिखा, राइट अदर नोड वोल्टेजेस एंड इफ इट इज अननोन, राइट वेरिएबल। आप एक वेरिएबल वोल्टेज उसको नाम दे दीजिए। कुछ वोल्टेज आपको डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ वेरिएबल रहेंगे, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, आपको जंक्शन लॉ लगाना है एट द अननोन वोल्टेज। थर्ड मैं यहां लिख रहा हूं, अप्लाई जंक्शन रूल एट द नोड वेयर द वोल्टेज इज अननोन। जहां पे वोल्टेज अननोन है, ये वाले नोड में हमको जंक्शन रूल अप्लाई करना है। उसके बाद स्टूडेंट अपन को इक्वेशन बनाना है, जितने वेरिएबल है उतना इक्वेशन बनेगा। तो आप देखिए स्टूडेंट, ये है जंक्शन, तो मैंने ये वाला एज्यूम पहले आपको दिखाया था, ये I1 में किया हूं, दिस इज I2, दिस इज I3। अब मैं स्टूडेंट जंक्शन रूल अप्लाई कर रहा हूं। I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। अब देखिए स्टूडेंट, I1 बहुत इजीली निकल जाएगा ओम्स लॉ से। देखिए ये है I1, V अपॉन R, तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना है यहां से यहां, यहां 10 है, यहां V है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 10 माइनस V अपॉन R, R का वैल्यू 2 है। I2 स्टूडेंट, I2 देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहां V है, यहां 0 है, तो V माइनस 0, V अपॉन R फॉर्मूला, अपॉन R 4 प्लस I3, पोटेंशियल डिफरेंस V माइनस 0 अपॉन 5। देखिए स्टूडेंट, एक ही इक्वेशन आ गया है, एक अननोन। जैसे आप इसको V सॉल्व करेंगे, सब ऑल द करंट्स यू विल गेट। अब इसमें रख देना I1 आ जाएगा, ऑल करंट्स, एक सिंगल लाइन में आपके सारे करंट्स आ गए स्टूडेंट, यू सी। अब स्टूडेंट मैं आपको ये एक कॉम्प्लेक्स सर्किट ये वाला बना के सॉल्व करके दिखाऊंगा यूजिंग नोडल एनालिसिस। ये तो आपको ये रूल्स याद रखना है, पोटेंशियल जीरो एट एनी वन नोड, ओनली वंस, एक ही बार लेना है जीरो, किसी को भी मान सकते हैं। फिर राइट अदर नोड वोल्टेजेस, अननोन है उसको वेरिएबल दीजिए, और जंक्शन लॉ कहां लगाइए, जहां वेरिएबल है। अब स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉम्प्लेक्स सर्किट है स्टूडेंट, हमें रेजिस्टेंस ये करंट निकालना है एट अक्रॉस एवरी पॉइंट, ठीक है। अब सबसे पहला रूल जीरो, मैं इसको जीरो एज्यूम कर रहा हूं, इस पॉइंट को, ये जंक्शन है, इसको जीरो एज्यूम कर लिया स्टूडेंट। तो ये जीरो है स्टूडेंट, ये सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, ये जीरो, देखिए यहां ये जीरो आ गया, इसका नाम ए है, देखिए ये 0 0 0, ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए ये भी 0 आ गया। अब स्टूडेंट ये 0 है, ये प्लस 10 लगा हुआ है वोल्ट, है ना, ये प्लस मीन्स हाई पोटेंशियल, मतलब यहां का पोटेंशियल आना चाहिए -10। अब देखिए ये सेम वायर है स्टूडेंट, इट इज सेम वायर, अगर यहां -10 तो यहां भी -10 आना चाहिए, -10 वोल्ट।
नाउ दिस इज कनेक्ट, ये 5 वोल्ट का सेल है, यहाँ से नेगेटिव से लगा है, तो ये -10 है स्टूडेंट, तो ये वाला पॉइंट को होना चाहिए -5 वोल्ट। अब कैसे निकालेंगे, -10 आप ट्रेवल करिए +5, तो -10 + 5 -5, इसका पोटेंशियल -5 आ गया स्टूडेंट। अब स्टूडेंट यहाँ देखिए, ये +0 में है, इसका मतलब ये नेगेटिव है, मतलब ये इसका पोटेंशियल होना चाहिए -6, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट का है। देखिए यहाँ -6 होना चाहिए स्टूडेंट। अब स्टूडेंट देखिए, ये 8 वोल्ट का सेल है, ये -6 है प्लस वाला, तो जब हम ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो देखिए -6 यहाँ का है, और जब मैं ऐसे ट्रेवल कर रहा हूँ ये 8 वोल्ट का माइनस तरफ, तो मतलब इसका पोटेंशियल हो जाएगा स्टूडेंट -14 वोल्ट। आप डिफरेंस करिए 8 आएगा, -14 वोल्ट। अब स्टूडेंट देखिए, ये 0 है, तो ये वाला पॉइंट, ये 3 का सेल है, तो इसका पोटेंशियल +3 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, दिस क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व। सपोज मुझे ये वाला करंट चाहिए इस 2 ओम से, तो मैं कैसे निकालूंगा, I2 ओम, फॉर्मूला है V/R। तो V कितना है, देखिए यहाँ 0, यहाँ -5, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ गया, 5/R2। देखिए करंट आ गया ये वाला, और करंट का डायरेक्शन क्या होगा स्टूडेंट, करंट फ्लो करता है हाई से लो, ओके, तो 0 हाई में ऐसे करंट जाएगा यहाँ। आप कोई सा भी करंट निकाल सकते हैं स्टूडेंट। ये वाला करंट देखिए, ये इस रजिस्टर में कितना करंट है, देखिए ये -10 है और ये -6 वोल्ट है, तो -6 हायर है, मतलब करंट ऐसे जाएगा। तो फिर से ये वाला करंट कितना होगा, I5। पोटेंशियल डिफरेंस, तो हाई पोटेंशियल -6 है, माइनस लो ये है -10, अपॉन ये रेजिस्टेंस 5 है स्टूडेंट। देखिए ये +10, ये 4/5 आ गया, ये वाला भी करंट आ गया स्टूडेंट। कोई सा भी करंट आप रजिस्टर से निकाल लेंगे, एनी रजिस्टर्स। ये वाला इस रजिस्टर से करंट कितना है, देखिए स्टूडेंट, ये 0 वोल्ट पे है और ये -10 वोल्ट पे है, मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है हाई टू लो। तो यहां का डिफरेंस कितना आ गया, 10/R। देखिए ये वाला करंट आ गया। अब अगर सपोज स्टूडेंट ये पॉइंट ए है, जिसका मैंने एज्यूम कर रखा 0 वोल्ट, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी निकालना है, ए बी, ठीक है। तो ए बी क्या होता है, VAB, ये होता है VA माइनस VB। VA 0 है, VB मतलब ये वाला पॉइंट B है, देखिए यहाँ +3 है, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस भी आ गया। Like this student, by the application of nodal analysis, any equation can be solved. So today student, you try this complex type of question using the nodal analysis. This is the third part of the lecture on the current electricity. Today we have discussed Kirchhoff's and loop analysis and nodal analysis. We will continue student in the next class. Thank you.